Student, in this video we can learn the new chapter called as a combinational logic circuit. Already you know the logic gate. Already you know the basic gate, derived gate. Using that basic gate and derived gate, we can construct the circuit called half adder circuit, full adder circuit, and so on. That half adder circuit, full adder circuit is called as a logic circuit because it can be constructed with the help of the logic gate. But combinational logic circuit is nothing but the combination of different types of this logic circuit. इसका मतलब जैसे लॉजिक गेट से लॉजिक सर्किट कंस्ट्रक्ट होता है तो लॉजिक सर्किट से कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट तैयार होता है. There are different types of the combinational logic circuit, just like multiplexer, demultiplexer, encoder, decoder and so on. हम उसमें से एक एक स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट हम ले रहे हैं मल्टीप्लेक्सर. स्टूडेंट, आपको पता है कि आपके घर में एक फैन का स्विच होता है. उस पर्टिकुलर फैन के लिए 5 इनपुट्स होते हैं. हम क्या करते हैं, मैन्युअली हमें जो स्पीड चाहिए वहाँ वो बटन कनेक्ट करते हैं. मतलब अगर हमने फर्स्ट पे कनेक्ट किया है तो मुझे फर्स्ट स्पीड मिलेगी, सेकंड पे कनेक्ट करते हो तो सेकंड स्पीड मिलेगी, थर्ड पे कनेक्ट करते हो तो थर्ड स्पीड मिलेगी एंड सो ऑन. That means that particular switch have the 5 inputs and the 1 output. Out of that 5 inputs, we can connect the one toward the output manually, and that switch is called as a rotary switch. But ये rotary switch manually operate होता है. अगर मुझे ऐसा ही स्विच चाहिए बट वो इलेक्ट्रिकली ऑपरेट होने वाला चाहिए तो हमारे पास एक स्विच है. दैट स्विच इज कॉल्ड एज अ मल्टीप्लेक्सर. Means the multiplexer is of course electrical switch which have the many input and the single output. But of course input is in the form of 2 raised to the power. That means 2 raised to the power 1, 2 raised to the power 2 means it has a 2 input, 4 input, 8 input, 16 input and so on. Means it has a number of input, single output. Out of that number of input, we can connect the one toward the output using another input, and that input is called as a select input. मतलब इनपुट उसको है बट इसमें से कौन सा इनपुट यहाँ कनेक्ट करना है ये डिसाइड करने के लिए उसको और दूसरा इनपुट होता है. दैट इनपुट इज कॉल्ड एज अ सिलेक्ट इनपुट और द कंट्रोल इनपुट. मीन्स यूजिंग सिलेक्ट इनपुट एंड कंट्रोल इनपुट वी कैन सिलेक्ट द वन out of n number of the input and connect toward the output. अगर ऐसा है तो it is called as a n:1 multiplexer और in short mux. अगर वो n:1 mux है तो इसका मतलब उसको n number of the inputs है d0, d1, d2, d3 up to dn-1 and single output है y. अगर n number of the inputs है तो उसको m नंबर ऑफ द सिलेक्ट इनपुट चाहिए और उसका जो रिलेशन है वो है 2 raised to the power m is equal to n. दैट मीन्स अगर 4 इनपुट्स है तो n is a 4 एंड m is a 2. तो 4:1 मल्टीप्लेक्सर के लिए मुझे 2 सिलेक्ट इनपुट चाहिए. अगर 8:1 मल्टीप्लेक्सर है तो इसका मतलब 8 इनपुट है 1 आउटपुट है तो n is a 8. देन इट रिक्वायर्ड द 3 सिलेक्ट इनपुट. अगर 16n है तो इट रिक्वायर्ड द 4 एंड सो ऑन. हम आगे देखेंगे. तो इसका मतलब अगर ऐसा मल्टीप्लेक्सर ऐसा सर्किट है तो देन सर्किट इज कॉल्ड एज अ मल्टीप्लेक्सर. इट इज अ n:1 सर्किट. इट हैज अ n number of the input, 1 output and m number of the select input. Using that select input we can select the one input and connect toward the output. That's why this circuit is called as a selector circuit. This circuit is called as a many source to one, many into one circuit. It accepts the more than one input and connect only one of them at a time to the output. For making this, again, this particular mux can be enable or disable using another input, and that input is called as a G input, enable input. ये यहाँ कनेक्ट किया है और यहाँ बबल कनेक्ट किया है.
इसका मतलब ये एक्टिव लो इनपुट है. इट इज एक्टिव लो इनपुट. एक्टिव लो मतलब अगर यहां 0 अप्लाई करो, लो अप्लाई करो, लॉजिक 0 अप्लाई करो तो वो एक्टिव हो जाता है. और वो अगर एक्टिव होता है तो ये मक्स एक्टिव होता है, मक्स इनेबल होता है, अदरवाइज मक्स डिसेबल होता है. अगर मुझे मक्स को यूज करना है तो फर्स्ट स्टेप you have to make the G input enable, means G input equal to 0. Then particular mux can be the use. Then particular mux can be transferred the input toward the output by using select input. बट अगर हमने यहाँ 1 कनेक्ट कर दिया तो यह ऑफ हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा. अगर ये डिसेबल हुआ तो वॉट एवर इट मे बी द सिलेक्ट इनपुट, हम यहाँ कुछ भी अप्लाई करो, पर्टिकुलर जो आउटपुट रहेगा वो ट्राई स्टेट कंडीशन में रहेगा, हाई इंपीडेंस स्टेट में रहेगा. दैट मीन्स इट नाइदर कनेक्टेड टू द 0 एंड नॉर कनेक्टेड टू 1. वो वीसीसी को भी कनेक्ट नहीं करेगा और ग्राउंड को भी नहीं कनेक्ट करेगा. ये कंसेप्ट आगे क्लियर हो जाएगा. बट फिलहाल ये मुझे पता चला कि दिस इज नथिंग बट द मल्टीप्लेक्सर विच हैव नंबर ऑफ इनपुट एंड द 1 आउटपुट एंड another input called the select input, another input is called the G input. We can make the enable or disable the mux. Of course it is a rotary switch, but it is a electrically operated switch. Rotary switch is a manually operated switch, right? Advantage: this particular mux have the one advantage that it reduce the complex wiring. Number of inputs अगर है, अगर मेरे पास 4 इनपुट्स है तो मुझे 4 केबल लगेंगे अप टू आउटपुट. अगर यहां से मुझे यहां तक डेटा ट्रांसफर करना है, मुझे ए से बी तक डेटा ट्रांसफर करना है, और अगर 4 डेटा है तो मुझे 4 केबल यूज करना पड़ेगा, राइट? नंबर ऑफ इनपुट अगर बढ़ गए तो नंबर ऑफ केबल भी बढ़ जाएगा. बट अगर मेरे पास मक्स है तो हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपल क्या कर रहे हैं कि यहाँ 4 इनपुट्स 4 इनपुट्स अगर है तो यहाँ एक मक्स कनेक्ट करेंगे और सिंगल आउटपुट उसका रहेगा, और उसमें से कोई भी एक इनपुट हम आउटपुट के लिए कनेक्ट कर देंगे. तो ये जो 4 केबल लगने वाली थी वो कम हो गई. दैट्स व्हाई वी से दैट इट रिड्यूस द कॉम्प्लेक्स वायरिंग. सेकेंड, इट डज नॉट रिक्वायर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉजिक एक्सप्रेशन. उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए लॉजिक एक्सप्रेशन जो दिया है उसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट उसको यूज कर सकते हैं. इट मिनिमाइज द आईसी पैकेज काउंट, दैट मीन्स इट मिनिमाइज द हार्डवेयर. क्योंकि अगर एक ही केबल से मुझे डाटा ट्रांसमिट करना है तो डेटा ट्रांसफर करने के लिए लगने वाला जो हार्डवेयर है वो मेरा रिड्यूस हो जाएगा. दैट्स व्हाई वी से दैट इट रिड्यूस द हार्डवेयर. ऑफकोर्स अगर हार्डवेयर कम होगा तो कॉस्ट भी कम हो जाएगी. दैट्स व्हाई इट मिनिमाइज द कॉस्ट. दिस इज द एडवांटेज ऑफ 4:1 mux. दिस इज द फर्स्ट सर्किट, combinational logic circuit, multiplexer, N:1 multiplexer. In next video we can learn the 4:1 multiplexer.